Assalamu alaikum, dear students. Welcome back. Today, let us study about the characteristics of a chemical reaction, as we are already done with the topics like balancing of chemical reactions and all. So, आज हम पढ़ेंगे characteristics of chemical reactions के बारे में. एक chemical reaction जब when it takes place, तो आप कैसे ये जान सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन जो है वो हो रही है या हमारे इर्द गिर्द हो रही है, बिकॉज देर आर लॉट्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस विच टेक प्लेस अराउंड अस इन आवर डेली लाइफ. तो ये कैसे पता चलता है? ये केमिकल रिएक्शंस जो हैं, जो चेंजेस होती हैं इनमें, केमिकल रिएक्शंस में चेंज हो जाती है. तो देर आर सम चेंजेस दैट कैन बी ईजिली दैट आर ईजिली ऑब्जर्वेबल, जो ईजिली हम ऑब्जर्व कर सकते हैं. कुछ ऐसी चेंजेस जो हम इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं, जो हम फील कर सकते हैं, जो हम देख सकते हैं इजीली. कोई बड़े बड़े टेस्ट्स उनके बगैर भी आप वो फील कर सकते हैं, देख सकते हैं. तो ये जो द इजीली ऑब्जर्वेबल चेंजेस दैट टेक प्लेस इन ए केमिकल रिएक्शन, दे आर कॉल्ड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए केमिकल रिएक्शन. सो हम इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि जो इजीली ऑब्जर्वेबल चेंजेस होते हैं, इजीली ऑब्जर्वेबल changes that take place during the chemical reactions, उन्हें हम कहते हैं characteristics of a chemical reaction. For example, हमारे पास है जब एक chemical reaction हो जाती है तो कुछ reactions में the formation of a precipitate takes place. तो जब precipitate बन जाती है तो ये एक characteristic हो गया, formation of a precipitate. Precipitate किसे कहते हैं? A precipitate is a solid substance which is formed on mixing of two solutions. तो precipitate क्या होता है? It is a solid substance. ये एक solid substance बन जाता है as a product from or by the mixing of the reactants in solution form. जो reactants हैं, जब reactants in solution form में होते हैं, अगर ये reactants after the reaction is completed, अगर ये कोई ऐसा product बनाते हैं जो कि in solid form हो, then we can say that that product is called the precipitate. और ये precipitate हम आराम से देख सकते हैं, एक test tube में हम देख सकते हैं laboratory में. तो laboratory में जब हम एक test tube में ये जान जाएंगे कि ये कोई solid substance बन गया by the mixing of the two substances in the solution form, तो हम कह सकते हैं कि precipitate formation हो गई और हमें ये पता चलता है कि chemical reaction has taken place. तो chemical reaction जो है वो हो रही है या वो हो गई. For example, in the reaction between lead nitrate and potassium iodide solutions, a yellow precipitate of lead iodide appears. जब हम reaction करवाते हैं between lead nitrate, these are the reactants, lead nitrate, और potassium iodide, जब ये दो reactants in solution form, दोनों reactants in solution form, जब ये react करते हैं, then what we get is a yellow precipitate of lead iodide, a yellow colored precipitate, PPT, precipitate of lead iodide. तो हम आराम से इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये येलो कलर्ड प्रेसिपिटेट जो है वो एक टेस्ट ट्यूब में फॉर्म होगी. तो इसका मतलब है कि दैट केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस. तो हो गया एक कैरेक्टरिस्टिक जिससे हम ये जान सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन जो है वो हो रही है या वो हो गई. Now, moving towards the second characteristic. So there are lots of the reactions in which the precipitate formation takes place. Now, there is another characteristic, important characteristic of a chemical reaction, that's called the evolution of a gas. Evolution of a gas. जो एक कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिनमें गैस फॉर्मेशन हो जाती है, वहाँ से गैस निकलना शुरू हो जाता है. तो उससे भी हम इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं, दूर से ही हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि अगर एक टेस्ट ट्यूब में या किसी बीकर में गैस फॉर्मेशन होने लगी है बाय द मिक्सिंग ऑफ द रिएक्टेंट्स, तो हमें पता चलता है कि एक रिएक्शन जो है वो द रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस और द रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस. फॉर एग्जाम्पल, इसकी एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूँगा. In the reaction between zinc and dilute sulfuric acid or hydrochloric acid, hydrogen gas is evolved. जब एक zinc जो है, zinc
एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 और HCl, तो वहाँ से हमें जिंक सल्फेट निकलता है और जिंक क्लोराइड is formed. So ZnSO4 or ZnCl2. So zinc sulfate और zinc chloride is formed. लेकिन इसके साथ साथ, ये तो मेन प्रोडक्ट है, लेकिन इसके साथ साथ और क्या बनता है? जिंक सल्फेट के साथ साथ हाइड्रोजन गैस भी बनेगा प्लस H2 गैस. तो ये जो हाइड्रोजन गैस है, ये इसके साथ साथ इवोल्यूशन ऑफ द गैस टेक्स प्लेस. तो जब ये हाइड्रोजन गैस निकलना शुरू हो जाता है, वी कैन इजीली ऑब्जर्व इट आल्सो. तो हमें पता चलता है कि केमिकल रिएक्शन जो है वो हो रही है. या देयर आर सम अदर रिएक्शंस आल्सो, लाइक व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड और व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट्स विद द डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो निकलना शुरू हो जाता है. तो इवोल्यूशन ऑफ गैस जो है, दिस इज आल्सो द वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन. Then there is another characteristic of the chemical reaction, third one, that is called the change in color. कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिनमें प्रोडक्ट जब बनता है तो वो प्रोडक्ट के बनने में कलर चेंज भी साथ साथ, द चेंज इन द कलर टेक्स प्लेस ऑल्सो. So there are some chemical reactions which are accompanied by the change in the color. For example, हम डेली लाइफ में अगर हम देखेंगे एक एग्जाम्पल, रस्ट फॉर्मेशन जब होती है ओवर द आयरन आर्टिकल्स, जो भी आयरन के ये चीज़ें होती हैं हमारे इर्द गिर्द या हमारे घरों में, तो उनमें एक रस्ट कलर, जो रस्ट जो है वो ऊपर से बन जाती है. तो रस्ट का कलर जो है वो डिफरेंट होता है, दैट इज ब्राउन इन कलर. रस्ट जो है ये ब्राउन इन कलर होता है, ब्राउन इन कलर. लेकिन जो आयरन का अपना कलर होता है, दैट इज ग्रेइश ब्लैक. आयरन का अपना कलर जो है दैट इज ग्रेइश ब्लैक. तो कलर चेंज हो जाती है फ्रॉम ग्रेइश ब्लैक टू रस्ट, बिकॉज अ न्यू केमिकल सब्सटेंस हैज फॉर्मड ओवर द आयरन. तो जो ये नया केमिकल सब्सटेंस आयरन के ऊपर बन जाता है, विच इज कॉल्ड द रस्ट, दैट इज अ डिफरेंट केमिकल सब्सटेंस. वो भी हम पढ़ेंगे अपने आने वाले टॉपिक्स में कैसे बन जाता है. सो वी कैन से दैट अ केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस बाय ऑब्जर्विंग द चेंज इन द कलर. इसी तरह से आपने पहले भी इस रिएक्शन में देखा, जो ये प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन हो रही थी, उसमें द रिएक्शन बिटवीन लेड नाइट्रेट एंड द पोटेशियम आयोडाइड, यू कैन सी अ प्रेसिपिटेट, येलो कलर्ड प्रेसिपिटेट इज फॉर्मड. तो इसमें एक तो प्रेसिपिटेट बन गई, हो गया वो एक कैरेक्टरिस्टिक. दूसरा येलो कलर भी आ गया हमारे प्रोडक्ट में, हमारे प्रेसिपिटेट जो है, जो प्रोडक्ट बन गया. तो इसमें क्या हो गया, लेड आयोडाइड जो है प्रेसिपिटेट, इसमें येलो कलर आ गया. सो दिस इज ऑल्सो अगेन द चेंज इन द कलर. सो नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक. Fourth characteristic is, we can say, change in the state. Change in state. चेंज इन स्टेट. कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिनमें चेंज इन स्टेट हो जाता है. जैसे एक स्टेट सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से गैस या लिक्विड से सॉलिड, ये चेंज इन स्टेट हो जाता है. तो हम इसे इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं और हमें पता चलता है कि केमिकल रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस. सो देयर आर सम केमिकल रिएक्शंस व्हिच आर अकम्पनीड बाय द चेंज इन द स्टेट. फॉर एग्जांपल, हम एग्जांपल इसकी ले सकते हैं, जो हमारे पास घरों में सॉलिड वैक्स जो होता है या कैंडल जो होता है, solid wax in the form of a candle जो होता है, when it burns it forms water vapors. जब ये हम इसे जलाते हैं तो इसे क्या निकलता है, water vapors निकलते हैं और इससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी इवॉल्व हो जाता है. कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी इससे निकलता है. तो here the change of the state has taken place. This solid wax or the candle, it was in the form of a solid state. When it burns, it changes into the gaseous state. तो वहाँ से स्टेट की चेंज हो, पहले ये लिक्विड स्टेट में चेंज होता है, तो वैक्स जो है वो लिक्विड बनना स्टार्ट हो जाता है, तो उसके बाद गैसियस स्टेट में चला जाता है, वाटर वेपर्स में चला जाता है, या कार्बन डाइऑक्साइड भी उससे निकलता है. तो यहाँ पर भी हम कह सकते हैं कि एक केमिकल रिएक्शन जो है बाय द चेंज इन द स्टेट, वी कैन ऑब्जर्व इट बाय द चेंज इन द स्टेट. या जो हमारी कार्स में फ्यूल होता है, पेट्रोल होता है या डीजल होता है, तो वो फ्यूल जो है दैट आल्सो बर्न्स व्हेन वी आर
ड्राइविंग और कार्स, तो उस टाइम जो फ्यूल बर्न हो जाता है तो वो फ्यूल जो वहाँ से वो स्मोक निकलता है उसमें क्या होता है, वाटर वेपर होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, विच आर ऑल्सो गैसेस. सो चेंज इन द स्टेट हैज टेकन place. Now, there is another characteristic of a chemical reaction, that is the change in temperature, which is one of the most important characteristics, change in temperature. Sometimes some chemical reactions, they are accompanied by the rise in the temperature, or they are also accompanied by the fall in the temperature. वो reactions जिनमें temperature increase हो जाता है by the rise in the, which are accompanied by the rise in temperature, they are called exothermic reactions. Exothermic reactions. And those reactions which are accompanied by the fall in the temperature, जिनमें टेम्परेचर फॉल हो जाता है, दे आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शंस. एक्सोथर्मिक, जो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हैं जिनमें दोज रिएक्शंस, for example, I can give you the example, when zinc pieces react with, or zinc granules react with a sulfuric acid in a beaker or flask, you can easily observe that if you touch the flask it will be warm. तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पे जो दिस रिएक्शन इज द एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि जो वहाँ पे हीट है वो इवॉल्व हो जाती है, जिसकी वजह से टेम्परेचर जो है वो राइज हो जाता है. एंड सच रिएक्शंस आर कॉल्ड, दे आर कॉल्ड द एक्सोथर्मिक reactions. Reaction between zinc and H2SO4, it gives ZnSO4, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस, जैसा कि मैंने पहले भी आपसे कहा. लेकिन ये रिएक्शन के होने में साथ साथ क्या हो जाता है, जब ये किसी बीकर में या किसी फ्लास्क में व्हेन दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस, तो हीट जो है वो इवॉल्व हो जाती है, जिसकी वजह से टेम्परेचर जो है वो राइज हो जाता है. एंड सच रिएक्शंस आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस. In some of the topics, I will also try to teach you what is the mechanism behind the rise in the temperature. क्यों ये temperature rise जो है कैसे हो जाता है, इसका mechanism क्या है, वो हम आने वाले topics में पढ़ेंगे. इसी तरह से कुछ reactions ऐसी होती हैं which are accompanied by the fall in temperature. Such reactions are called endothermic reactions, जैसा कि मैंने आपको बोला. और वो endothermic, for example, when a reaction takes place between barium hydroxide and ammonium chloride. So what happens, you can find the products which are barium chloride and ammonium hydroxide. जब ये रिएक्शन हो जाती है in a test tube, and when the reactants are mixed with a glass rod, then on touching the bottom of the test tube it is found to be cooler. ये जब हम इसको टच करते हैं, अपने हाथ से टच करते हैं, तो ये हमें फील हो जाता है कि ये बहुत ज़्यादा कूल है. तो इससे क्या हो जाता है, क्यों बिकॉज द हीट हैज़ बीन एब्जॉर्ब्ड. इस वक्त हीट एब्जॉर्ब हो गई है, बाहर से एब्जॉर्ब हो गई है अंदर की तरफ, तो बाहर से जो है टेम्परेचर है वो डाउन हो जाता है, फॉल हो जाता है, जो हम टच से आराम से देख सकते हैं कि देयर इज द डिक्रीज इन द टेम्परेचर. So these were some of the characteristics of the reactions. तो characteristics अब हम किसे कहते हैं? So they are the easily observable changes during when the chemical reaction takes place. They are accompanied by some changes, and those easily observable changes are called the characteristics of a chemical reaction. For example, the precipitate formation, evolution of a gas, change in color और change in the state, change in temperature. तो ये इन सब को हम कहते हैं वो changes जो हम easily observe करते हैं. तो इससे हमें पता चलता है कि हमारे इर्द गिर्द जो हैं वो reactions हो जाती हैं, या हम in our lab, in our school lab, we can easily observe that the chemical reaction has taken place. और कुछ reactions ऐसी होती हैं जिनमें जब chemical reactions हो जाती हैं तो उनमें precipitate भी बन जाता है और उनमें change in color भी हो जाता है. तो कुछ reactions ऐसी होती हैं जिनमें जो which can be detected by more than one characteristic. So इससे हमें ये पता चलता है कि हमारे इर्द गिर्द बहुत सारी reactions हो जाती है हमारी daily life में या हमारे lab में. So in our next topic we will
inshallah we will study about the types of the chemical reactions. Till then, fi amanillah.